محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیب نور۔ آخری پینا ہے ساقی، لہٰذا اس سلسلے کی آخری کڑی، اس دریائے فکر و تدبر کے آخری تجربے کار ہم سب کے بڑے حضرات علماء کے منظور نظر حضرت والا حضرت مفتی خالد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ 2-3-4 باتیں ہوں گی اور دعا ہو جائے گی، اس لیے تمام حضرات جو ادھر ادھر جانے کی فضا بنا رہے ہیں، ابھی آپ نے بتایا تھا آپ عشاء کے بعد سے لے کے اب تک بیان سن رہے ہیں، جب آخر میں دعا کا وقت آیا تو ہم چلے جائیں، پھر اس بیان سننے کا یا یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہم لوگوں کا ہوا؟ تو اس لیے حضرت تشریف لا چکے ہیں، آپ بیٹھ جائیں اطمینان سے۔ یہ آخری اور اختتامی بیان ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں برآئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے،
اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی پاکیزہ مائیں اور بہنوں، بڑی خوشی ہوئی، بڑا دل کو سکون پہنچا اور تمام سفر کی تکان یہاں کے اس پررونق اور با نورانی اس محفل کو دیکھ کر کے ختم ہو گئی کہ ذرا سا مدرسہ اور محتمم بھی ہلکا، وجود میں کمزور، بالکل باوزن نظر نہیں آیا، لیکن جب محنت کو دیکھا گیا، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ چار حافظ قرآن آپ کو عطا کیے۔ اسی طریقے سے معصوم بچیاں کہ جنہوں نے کچھ قرآن کریم کی سورتوں کو حفظ کیا، مکمل قرآن کریم پڑھ لیا، یہ تمام کی تمام کوششیں، کاوشیں کسی اور کی نہیں، آپ ہی کے لخت جگر اور آپ ہی کے محبوب طالب علم حضرت اقدس قاری محمد عارف سلمہ ہو، انہوں نے ان کی محنت کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مجلس بخشی کہ اس پر رونق مجلس میں اتنے سارے حافظ قرآن اللہ نے عطا کیے اور اتنی ساری بچیاں جو کچھ حافظہ بن کر کے تیار ہو گئی اس معصوم سے طالب علم نے، اور اتنی کم عمر میں اللہ نے اتنا اس کو ترقیات سے نوازا۔ اگر میں اور آپ ایسے طالب علم کو محنت کا اور میدان دے دیں، محنت کی اور جگہ دے دیں، محنت کی اور اس کو راستہ دے دیں تو شاید یہ اور زیادہ محنت کر سکتا ہے، شاید یہ اور زیادہ اس گلشن کو گل گلزار کر سکتا ہے، ان معصوم طلبہ کو اور زیادہ سے زیادہ حافظ بنا سکتا ہے، ان معصوم طالبہ کو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب کر سکتا ہے، علم سے روشناس کرا سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابھی اس کا اپنے زمین پر مدرسہ نہیں ہے، کسی کا گھر ہے جس کو تعلیم کے لیے مختص کیا گیا ہے، اس میں تعلیمی سلسلہ چل رہا ہے اور اللہ اس کو مقبول بھی کر رہا ہے، اللہ اس کو قبولیت تک پہنچا رہا ہے۔ اب کمی ہے تو میری اور آپ کی محنتوں کی، یہ بالکل جلسے کی آخری کڑی اور آخری لمحے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، آؤ میں اور آپ ان آخری لمحوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر کے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے آؤ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، آؤ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے ان گناہوں کو صاف کرا لیں، کیونکہ ان کو صاف کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ اور کبھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا۔ ارے میرے اللہ نے بڑے بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، یہاں تک کہ خدائی کے دعوے کرنے والے، یہاں تک کہ نبیوں کے قتل پہ رہنے والے ایسے لوگوں کو میرے اللہ نے معاف کیا۔ اگر وقت ہوتا تو ضرور بتلاتا، لیکن پھر بھی بتلاتا چلو۔ او اللہ کے نیک بندو، میرا اور آپ کا اللہ کیسے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کیسے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ آؤ تمہیں لے کر کے چلتا ہوں، حضرت حسن بصری کا زمانہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ ولیوں کا امام ہے۔ ایسے وقت میں ہاں ان کی ایک مریدہ ہے، ایک عورت ان سے بیعت ہے، ان سے اپنا روحانی تعلق رکھتی ہے، وہ ان کو اپنا پیر و مرشد سمجھتی ہے، اس کے اکلوتا بیٹا ہے۔ آؤ گفتگو بالکل شروع اور آخر کرنے چلا ہو، اور اللہ کے نیک بندو سنتے چلے جانا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی ایک مریدہ
मुरीदा है, उस मुरीदा के एक लड़का है, हाँ उनका एक साहबजादा है, एक लौता साहबजादा है, बाप का साया सर पर नहीं है, लिहाजा माँ बड़ी मोहब्बत अपने बेटे से करती है। लेकिन कभी कभी माँ की मोहब्बतें, माँ का लाड़ और प्यार साहबजादे को नुकसान तक पहुंचा देता है, हाँ बिगाड़ तक पहुंचा देता है। लिहाजा हसन बसरी की मुरीदा का ये बेटा ये भी बिगाड़ की तरफ चला गया, यहाँ तक के नशे का आदी हो गया, यहाँ तक के नशा करने लगा, और इतना नशे का आदी हो गया कि मुरीदा बार बार पकड़ करके हजरत हसन बसरी की खिदमत में ले जाती हैं और ले जा करके उनको नसीहत कराती हैं। हजरत हसन बसरी नसीहत करते हैं, लेकिन ये बाहर आते ही उन नसीहतों को एक तरफ डाल देता है और कहता है ये बुजुर्ग तो ऐसे ही कहते हैं, ये उलमा तो ऐसे ही कहते हैं, ये दावत के साथी तो ऐसे ही कहते हैं, इन्हें क्या मालूम कि जमाना कहाँ चला गया, इन्हें क्या मालूम कि जमाना कितना आगे हो गया, ये अब भी पुरानी बातें करती हैं, ये अब भी दकियानूसी गुफ्तगू करते हैं। लिहाजा हसन बसरी उस नौजवान को समझाते हैं, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आती, लिहाजा जमाना गुजरता गया, बारहा हजरत हसन बसरी उस नौजवान को समझाते हैं, लेकिन बात समझ नहीं आती। एक दिन ऐसा हुआ, नशे की वजह से गुर्दे खराब हो गए, नशे की वजह से आंतें खराब हो गई, और एक वक्त ऐसा आया कि ये दुनिया से रुखसत होने लगा। अब माँ की आंखों में आंसू हैं, माँ के रोने की वजह ये नहीं कि मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो रहा है, बल्कि माँ के रोने की वजह ये है कि मेरा बेटा गुनाह की हालत में दुनिया से रुखसत हो रहा है। अल्लाह को जाकर के क्या जवाब देगा, अल्लाह को जाकर के क्या मुंह दिखाएगा। लिहाजा जैसे ये मरने के करीब हुआ, माँ जल्दी से दौड़ती हुई हजरत हसन बसरी की खिदमत में पहुंचती हैं और पहुंच करके अर्ज करती हैं, ए अल्लाह के नेक बंदे, ए अल्लाह के वली, मेरा बेटा बिल्कुल मरने के करीब है, आओ कुछ इस तरह का मामला कर दो ताकि जब वो दुनिया से जाए तो ईमान की हालत में जाए, ताकि जब वो दुनिया से जाए अल्लाह को जाकर के मुंह दिखाने के काबिल हो जाए। मुझे ये गम नहीं है कि मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो रहा है, बल्कि गम ये है कि मेरा बेटा गुनाह की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। मेरे रोने की वजह ये है, हसन बसरी फरमाते हैं, ए अल्लाह की बंदी, मैंने इसको बड़ा समझाया लेकिन इसकी बात समझ नहीं आई, मैं अब इसको नसीहत नहीं करूंगा, मैं अब दोपहर का खाना खाकर मैं कैलुल्लाह करने के लिए जाऊंगा, मैं दोपहर को जरा सा सोता हूँ, जो मेरे आका की सुन्नत है मैं उस सुन्नत पर अमल करूंगा, लिहाजा अब तुम अपने घर को लौट जाओ। चुनाचे मुरीदा हसन बसरी के यहाँ से रोती हुई अपने बेटे के पास आती है और बेटे का सर उठाती है, उठा करके अपनी रान पर रख लेती है और रख करके रोना शुरू कर देती है। बेटे के चेहरे पर जब माँ के आंसू गिरते हैं तो बेटे का दिल मौम हो जाता है और कहते, अम्मा आपके रोने की वजह क्या है, आपके इस कदर आंसू बहाने की वजह क्या है। चुनाचे माँ कहती है, बेटे मुझे इस चीज का गम नहीं कि तू दुनिया से जा रहा है, लेकिन ये गम है कि तू गुनाह की हालत में दुनिया से जा रहा है। अल्लाह को जाकर के क्या जवाब देगा, अल्लाह को जाकर के क्यों मुंह दिखाएगा कि मैं नशे का आदी था, मैं नशे में डूबा हुआ था। क्या दिखाएगा कि रातों के अंधेरों में शराब पीता था, क्या मुंह दिखाएगा कि रातों के अंधेरों में बियर मेरे हाथ में रहा करती थी, क्या मुंह दिखाएगा। लिहाजा माँ अपने बेटे को नसीहत कर रही है, इस नशे की हालत में जाकर अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होगा, इस गुनाहगारी की जिंदगी की हालत में अल्लाह के सामने जाकर के क्या कहेगा। मेरे रोने की वजह यह है, हाँ अल्लाह मुझे भी कहेगा कि माँ ने परवरिश नहीं की है, माँ ने मेहनत नहीं की है, माँ ने नसीहत नहीं की है, माँ ने समझाया नहीं है, लिहाजा अल्लाह मुझे भी कहेगा, ओ मेरे बेटे मुझे गम ये है कि तू अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। जब माँ के आंसू बेटे के चेहरे पर गिरे हैं तो बेटे के दिल में तरस आया, रहम आया। जब अपनी माँ को रोते हुए देखता है तो बेटे ने कहा, अम्मा जान अगर यही बात है, अम्मा अब जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे गले में रस्सी को डाल देना, अम्मा जब मेरे गले में आप अपना दुपट्टा डालें तो मुझे घसीट करके मुझे पूरे गांव में धकेलना, मुझे पूरे गांव की गलियों में घसीटना, सबके सामने ले जाना, लोग मालूम करे कौन है तो कह देना मेरा नाफरमान बेटा है, अल्लाह का नाफरमान बेटा है, गुनाहगार बेटा है। लिहाजा माँ मुझे पूरे गांव के लोगों के सामने जब मेरा इंतकाल हो जाए तो घसीट
घसीटना, और अम्मा जब तुम मुझे कब्रिस्तान के करीब ले जाओ मुझे गुस्ल न देना, मुझे कफन न देना, और मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी न करना, कहीं अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से पूरे कब्रिस्तान वालों को अजाब में न घेर ले। इसलिए अम्मा न मुझे कफन देना, न मुझे गुस्ल देना, न मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना, अम्मा पूरे गांव में घसीट करके मुझे फिर उसी घर के अंदर लाना और अपनी चारपाई के नीचे एक हला खोदना और मुझे उसी में दफना देना और बिल्कुल कब्र को बराबर कर देना। कोई नमाज नहीं, कोई गुस्ल नहीं, कोई कफन नहीं, कोई तजहीज़ तकफीन नहीं, बस यही घर के सहन में दबा देना। चुनांचे इतना कहकर उसने अपने अल्लाह की तरफ अपना दिल लगाया और अपनी आंखों को अल्लाह की तरफ उठाया और उठा करके कहने लगा, ऐ रब्ब करीम मैं बिल्कुल तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे पास कोई मौका नहीं है, पूरी जिंदगी मैंने गुनाहों के अंदर डुबो करके रखी है, पूरी जिंदगी तुझे नाराज किया है, ऐ रब्ब करीम क्या तेरे पास अब भी मेरे लिए कोई गुंजाइश है? क्या तू मुझे अब भी माफ कर सकता है? क्या मेरे लिए कोई माफी का परवाना है? लिहाजा इतना कह करके अपनी आंखों में आंसू भर के ये नौजवान दुनिया से रुखसत हो जाता है। इधर माँ रो रही है, बेटा दुनिया से रुखसत है। अब माँ कह करे तो क्या करे, बेटे ने घसीटने के लिए कहा, बेटे ने कफन के लिए मना कर दिया, गुस्ल के लिए मना कर दिया, यहाँ तक कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी आने के लिए मना कर दिया। अब चाहे तो ये माँ बूढ़ी माँ क्या कर सकती है, आखिरकार बेटा है। लिहाजा मेरे भाई अभी माँ ज़ारो कतार रो ही रही है, किसी ने आकर के कुंडी खटखटाई, माँ ने खड़े होकर के दरवाजा खोला। जानते दरवाजे पर कौन था? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पर तशरीफ फरमा है। हाँ माँ कहने लगी, आप मेरे कहने से नहीं आए, आप अब क्यों तशरीफ लाए? मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो चुका है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। लिहाजा हजरत हसन बसरी कहते हैं, ए अल्लाह की बंदी क्या कह रही हो? जरा मुझे अपने बेटे की शक्ल दिखाओ, जरा मुझे अपने बेटे की मैयत दिखाओ। और मैं इसलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं अभी दोपहर का खाना खाकर दोपहर के लिए जरा सी देर लेटने गया, मुझे अल्लाह की तरफ से आवाज आई है, ए हसन क्या मेरे दोस्त के जनाजे में नहीं जाओगे? क्या मेरे महबूब के जनाजे में नहीं जाओगे? अल्लाह कौन है आपका दोस्त? कहा वही मुरीदा, उसका गुनाहगार बेटा। अभी मरने से पहले उसने ऐसी तौबा की है, हाँ ऐसी तौबा की है, ए हसन हम तुम्हें हुक्म देते हैं, जाओ उसके गुस्ल का इंतजाम करो, जाओ उसके कफन का इंतजाम करो, जाओ उसकी जनाजे की नमाज का इंतजाम करो, जाओ उसके कब्रिस्तान के अंदर तदफीन का इंतजाम करो। और बाज तो ये कहते हैं, हसन जो भी उसके जनाजे में शामिल होगा उसने तौबा ही ऐसी की है, हर शामिल होने वाले की हम मगफिरत कर देंगे। और मेरे भाई मैं और आप भी ऐसे वक्त बैठे हुए हैं, इसलिए बिल्कुल ये ना समझें कि अल्लाह हमें माफ कैसे करेगा। मैं और आप अपने अल्लाह को कोई अदा ऐसी दिखाएं कि जिससे मेरा और आपका अल्लाह मुझसे और आपसे राजी हो। तो मैं गुफ्तगू करने चला था, हजरत कारी आविज हाँ सल्लम हो, ये एक मदरसा चला रहे हैं, जमीन इनके पास अपनी नहीं है, लेकिन इस बच्चे की उड़ान तो देखिए, हो सकता है ये आपसे फीस लेता हो, लेकिन बतलाओ फीस से क्या होगा? क्या तनख्वाहें मुकम्मल हो जाएंगी? अगर तनख्वाह मुकम्मल हो भी गई, क्या मदरसा जमीन पर आ जाएगा? क्या जमीन मदरसे की हो जाएगी? क्या फीस के जरिए से कमरे तैयार हो जाएंगे? अगर अल्लाह ने ऐसा होनहार बेटा, ऐसा होनहार बेटा अल्लाह ने अगर आपको दिया है, तो ऐसे बच्चे की कदर करिए, ऐसे बच्चे के बाजुओं को खोल दीजिए। माशाअल्लाह, लो अभी तो जबान से बात निकली भी नहीं। और हजरत हाफिज अरशद साहिब जो टेहर की मदरसे के बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े नेक और मुत्तकी हैं, 150 गज जमीन कारी आरिज आपको हाफिज अरशद इंशाअल्लाह देंगे, हमारे दामत बरकातुहुम। अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले। कहाँ है हाफिज आरिज? कारी आरिज यहाँ तशरीफ रखें।
माशाअल्लाह गांव आपसे मोहब्बत करेगा और गांव आपकी उड़ान को देख करके इंशाअल्लाह आपके बाजुओं को खोलेगा इंशाअल्लाह। और इस साल आप जब बगैर मदरसे के इन्हें 4 बच्चे हाफिज करके दे सकते हैं, तो जब अल्लाह आपका मदरसा कायम करेगा और मदरसे के लोगों की, हमारे गांव के लोगों की जिम्मेदारी और इनकी निगाहें उस मदरसे पर होंगी, तो इंशाअल्लाह 4 नहीं, मुझे उम्मीद है कि 40 बच्चे या 400 बच्चे इंशाअल्लाह हर साल हाफिज हुआ करेंगे। कह दो आमीन। लेकिन रहेगा गांव की निगरानी में इंशाअल्लाह। ये बच्चा मेहनती है, ये बच्चा बाजुओं को अगर आप इसकी खोल दें तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ इस दुनिया में करके दिखा सकता है। अभी उम्र ही क्या है, देखो कितनी उड़ान इसकी मजबूत है। अल्लाह इसके जरिए से कितना दीन का काम ले रहा है। कारी मौलाना नदीम साहब, हम बड़े बड़े मदरसों में होकर के आ रहे हैं, लेकिन 1 या 2 हाफिजों से ज्यादा हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन अल्लाह जटवाड़े की जमीन पर ऐसा मजबूत कारी अल्लाह तूने हमें अता किया है। ओ अल्लाह के नेक बंदो, ऐसे बच्चे की कदर करो, ऐसे बच्चे की कदर करो, ऐसे बच्चे को हिम्मत दो, ऐसे बच्चे के लिए दुआएं करो, ऐसे बच्चे के लिए अपना खून पसीना एक कर दो, ताकि हमारी नस्लों में हाफिज और आलिम पैदा हो जाए। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत हाफिज अरशद साहब माशाअल्लाह माना नदीम 150 गज जगह देंगे इंशाअल्लाह, यहीं पर कहीं पड़ी हुई है इंशाअल्लाह, वो मदरसे के लिए देंगे। और है कोई लाओ भैया, किसके हैं, क्या नाम है आपका? भाई मोहम्मद